Good morning, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse. The two-day Northeast International Conference on Sustainability 2025 has begun under the initiative of the Department of Social Work, Assam University, Silchar. Organized with the aim of holistic and sustainable development of Northeast India, this conference is sponsored by the Northeastern Council, Government of India. It is also supported by the Assam Pollution Control Board. Speaking at the inaugural session, the Vice Chancellor of Assam University, Silchar, Rajiv Mohan Pant, expressed hope that the conference will offer a new direction in the areas of environmental protection, rational use of resources, green development and social responsibility in the Northeast. Experts, researchers, environmental activists and students from within the country and abroad are participating in this two-day conference. Discussions will be held on important topics such as environmental conservation, the impact of climate change, sustainable agriculture, renewable energy and the role of local communities across a total of 12 technical sessions. One of the major attractions of the conference is an exhibition by various NGOs and voluntary organizations working in the field of environmental protection in the Northeast. I was in Arunachal for a very long period of time, about 20 years, then 7 long years I spent in Guwahati, which gave me an opportunity to understand Northeast much better. I was taking care of all 8 Northeastern states, and that made me realize how beautiful this land is. If I am to describe Northeast in just one word, I will say that Northeast is a bouquet of choicest flowers picked up from this region. 7 sisters or Ashtalakshmi, but it's a beautiful bouquet of flowers which are picked up from this beautiful region, and that forms the Northeast. If I talk about, my previous speakers have already highlighted the strengths of Northeast, what kind of uniqueness we have in Northeast. Of course, since they already explained everything, I did not repeat that, but yes, still so much of temptation. I was in Arunachal, and Arunachal is the land of Tony Polo. Arunachal is number 1 as far as forest cover is concerned in the country. 80% land is covered by forest. What a sustainable way of living life. ये हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 2 दिन का, जिसमें कि पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हमारा प्रमोट कर सकते हैं, कंजर्वेशन, इनोवेशन, और जो नॉर्थ ईस्ट में हम तो सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही रिच है अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के विषयों में, और उसको हम किस तरह से, और यहाँ पे कंजर्वेशन की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, या कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों को हमें संजो कर रखना है, बचा के रखना है, इस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये 2 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्हीं एस्पेक्ट्स पे है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उन स्ट्रेंथ्स को हम कैसे यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे डॉक्टर लाल जो है, डॉक्टर दिनेश्वरी देवी जी हैं, और ये हमारे विशिष्ट अतिथि लोग आए हैं इसमें काफ़ी, और पूरे विश्व भर के काफ़ी एनलाइटन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा डिस्कशन होगा 2 दिन में, और कुछ अच्छे पॉलिसी मेकिंग के लिए हम यहाँ से सजेशन दे पाएंगे। बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि हमारा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही रिच है ट्रेडिशंस के मामले में, और हमारे युवा जो है, यही तो हमारे 2047 में हमारे विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे। कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ्स को, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स जो हमारी हैं, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको इकोनॉमिक गेन्स के लिए। तो ये सारी इन चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन होगा, नया मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने की पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा यूज करके उसके पूरा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल है, और युवाओं को एक अपनी संस्कृति पर एक आत्मसम्मान की भाव जगेगा। On Friday morning, Churaibari police checkpost in Sribhumi district of Assam bordering Tripura seized a whopping 228 kilograms of dry ganja. The seized narcotic substances were coming in a vehicle which was intercepted at Churaibari checkpost at Assam-Tripura border. On a thorough search of the vehicle, the Churaibari police team recovered 228 packets containing 258 kilograms of ganja from the vehicle.
Further investigation is ongoing, informed police sources of Shribhumi district, and the value of the seized goods in the black market would be worth rupees 2.5 crore. কাটি উলিয়াই দিয়ক অৰুকে কাটাও না ইমান ডাঙৰ হ'ব হ'লে বছ অঁ এইটো কি আছে হা ভাল কৰি দেখাই দিয়ক আপুনি দেখাই দিয়ক চাই লওক ঠিক আছে অঁ ৰাখি দিয়ক পানী নিদিব পিছত চহী কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' হৈছে ফটো মাৰি লওঁ The 19th edition of the Waves Film Bazaar opened with an unexpected moment on Thursday when South Korean lawmaker Jae-won Kim sang Vande Mataram during the inaugural ceremony, drawing a standing ovation from delegates and filmmakers gathered for the event. Kim, a member of the National Assembly of the Republic of Korea and a guest of honor at the ceremony, praised the organizers for their commitment and consistency since the first edition. Expressing hope for deeper India-Korea ties in the creative sector, she said the Film Bazaar reflects a wonderful commitment to collaboration. Her rendition of India's national song came as the country marks 150 years of Vande Mataram, adding symbolic weight to the opening day. The event was inaugurated by Minister of State for Information and Broadcasting, L. Murugan, who was joined by Ministry Secretary Sanjay Jaju, actors Nandamuri Balakrishna and Anupam Kher, Festival Director Shekhar Kapoor, and other dignitaries. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malaysia Sitaram, Sashasamalam Mataram, Vande Suprajasna Pulakitayamini Pulakusumita Trumadala Shobini Suashini Sumaturi Bashini Sukadam Varidam Mataram Vande Mataram. Some more big sound. Korti Korti Kanta Kala Kala Dinada Karale Korti Korti Vuji Drata Kala Karavale Bahula Verina Itavole Bahubali Darinim Namami Darinim Ripudale Varinim Mataram Vande Mataram Tumi Vidya Tumi Dharma Tumi Redi Tumi Mahana Tvam hi prana sharire Bahuti tumi ma shakti Rite tumi ma vakti Tumarai pradima kari mandire Mandire Mataram Vande Mataram Tvam hi Durga Dasha Prana Dharini Kamala Kamala Dalaviharini Vani Vidya Tayini Namami Tvam Namami Kamala Amala Matula Sujalam Supalam Mataram Vande Mataram Shamalam Sharalam Susmitam Bhushitam Taranim Balanim Mataram Vande Mataram Vande Mataram
Union Home Minister Amit Shah on Friday attended Border Security Force's 61st Raising Day event as the chief guest, held at the 176th Battalion campus in Haripar, Bhuj. During his visit, HM Shah paid tribute to the Jawans who laid down their lives in the line of duty, laying a wreath at the memorial for the Jawans. BSF is primarily tasked with the India-Pakistan border. Before the creation of the force, the border was manned by the State Armed Police Battalion. Union Home Minister Amit Shah said the bravery of BSF personnel is truly commendable, noting that the festival is taking place on a land of immense valor. He added that Gujarat holds special significance for him as it is where he grew up and began his public life. Shah said the region, known for its unwavering courage, has protected the nation through centuries of adversity while also making remarkable strides in development. हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 60वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है और देश साक्षी है। कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक सुंदर और विकसित हुआ है। At present, BSF is holding 193, including 3 NDRF battalions and 7 BSF RT regiments guarding international border with Pakistan and Bangladesh. In addition, the BSF is also performing anti-infiltration role in Kashmir Valley, counter-insurgency in Northeast region, anti-Naxal operations Odisha and Chhattisgarh states, and security of integrated checkposts along Pakistan and Bangladesh international border. Sanjay Kumar Jain, Joint Commissioner of Police, Southern Range, said the Delhi Police has launched Operation Cyber Hawk to crack down on the financial networks behind cyber fraud. He stated that within 48 hours, action was taken against 1,400 suspected individuals operating from Delhi. Around 900 of them have been arrested for detained, while notices have been issued to roughly 500 others. Jain added that similar operations will continue in the future. मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्दी सीपी श्री सतीश गोलचार जी के नेतृत्व में और उनकी एक्टिव गाइडेंस में ये ऑपरेशन साई हॉक लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रॉड के पीछे जो इसका फाइनेंशियल चैनल कंड्यूट जिसके थ्रू ये मनी ट्रांसफ़र होती थी, उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ब्रेक करना था। सीपी साहब की वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी थी कि साइबर क्राइम पर लगाम लगे और साइबर क्राइम से जो पैसों का लेन देन हो रहा है, नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल भी शैपनिंग ऑफ हो रही है और कहीं ना कहीं पैसा किसी ऑर्गेनाइज क्राइम में या अन्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है। तो इसके तहत पिछले 1 महीने में हमने बड़ा एक डाटा एनालिसिस किया गया। ये पूरा ऑपरेशन डाटा ड्रिवन इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग का नतीजा है। इसमें I4C से बेसिक डाटा लिया गया, उनके हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए और इसके बाद
उसका वेरिफिकेशन करके हमने सस्पेक्ट पिन पॉइंट किए जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि साइबर क्राइम में जो विक्टिम होता है वो कहीं भी बैठा होता है, बट वो पैसा अलग अलग अकाउंट से अलग अलग चैनल से कहीं और पहुंचता है। तो इट्स ए पैन इंडिया काइंड ऑफ नेटवर्क। तो उन नेटवर्क को हमने जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया, और ये ऑपरेशन 19 नवंबर को 48 आवर्स का ऑपरेशन लॉन्च किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कड़ी कार्रवाई हम कर सके। इस ऑपरेशन में दिल्ली के सारे 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिले शामिल थे। सभी ने एक कोऑर्डिनेशन के तहत ये कार्रवाई की, और उसका नतीजा है कि हमने करीब 1400 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, जिसमें से करीब 900 लोगों को या तो अरेस्ट किया गया या बाउंड डाउन किया गया, और 500 लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं ताकि उनकी आगे की कार्रवाई एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड ला सके। इसमें हमने करीब 350 नई FIR दर्ज की गई हैं, और 160 पुरानी FIR पर भी काम किया है, उनके एक्यूज को अरेस्ट किया है। करीब 3800 ऐसी कंप्लेंट, साइबर अपराध कंप्लेंट थी जो NCRP पोर्टल पर दर्ज थी, उन पर कार्रवाई हुई है, उनको लिंक किया गया है, और उस सारी कंप्लेंट्स में करीब 1000 करोड़ से ऊपर का ये फाइनेंशियल फ्रॉड का अमाउंट निकल के आता है। इसमें मेजर कार्रवाई म्यूल्स अकाउंट्स के खिलाफ हुई है, जो मेजर एक टूल है जिसके थ्रू ये सारा फ्रॉडस्टर का, स्कैमस्टर का पैसा मूव होता है। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ म्यूल अकाउंट्स होल्डर, उनके एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं, उनको बस्ट किया गया है। एक इंटरनेशनल म्यूल अकाउंट्स भी हमें पकड़ा है, जिसमें 25 म्यूल अकाउंट हैं जो पैन दिल्ली चल रहे थे। उसमें एक एक्यूज्ड जलंधर बेस्ड भी था, उस जलंधर से भी उसको अरेस्ट किया गया है। और ऐसे मल्टी कॉल सेंटर हमने पकड़े हैं जो ना खाली डोमेस्टिक क्लाइंट्स को बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी ठग रहे थे। तो एक मेजर लार्ज स्केल का ऑपरेशन रहा, और बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा। और इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिस द बिगिनिंग, एंड ऐसे ऑपरेशन लगातार होते रहेंगे ताकि साइबर क्राइम दिल्ली में ना पनप पाए, और हम अपनी इकोनॉमी को साइबर सेफ और साइबर रिलीजियस बना सकें। सर, अभी भी तमाम लोग होते हैं वो अकाउंट में पैसा भेजवाते हैं, उसके बाद वो फ्रॉड का शिकार होते हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि लोग सेफ रहे और इस फ्रॉड का शिकार? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में बेसिक साइबर हाइजीन अपनाएं और साइबर स्मार्ट बने। कोई भी सस्पिशियस लिंक को टैप ना करें, वो बेसिकली फ्रॉड का लिंक होता है। मल्टी फैक्टर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाएं ताकि आपका व्हाट्सएप या आपका फ़ोन या ईमेल हैक ना हो। और कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जिसे हम कहते हैं कि लालच में ना आए, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो जो आपको शुरू में लालच देते हैं, रिटर्न आपका अच्छा दिखाते हैं, बट दे आर टोटली नॉन रिकॉग्नाइज्ड, RBI से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं, ऐप बेस्ड होते हैं, वो सब इलीगल चल रहे होते हैं, उससे बचें। और डिजिटल अरेस्ट से भी बचें। इंडिया में कभी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही ऑनलाइन अरेस्ट वारंट इशू होते हैं, ना ही ऑनलाइन नोटिस इशू होते हैं। तो इन सब से बचें और अपने आसपास संदेश फैलाएं, और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आप ठगी कर पाएं। Bharatiya Janata Party leader Devyani Rana on Friday took oath as the MLA of Nagrota constituency in Jammu. She won the Nagrota seat with 42,350 votes, securing a victory margin of 24,647 in the recently concluded by-poll. The oath-taking ceremony was administered by the Speaker of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, Abdul Rahim Rathar. The Bharatiya Janata Party managed to retain Jammu and Kashmir's Nagrota seat with late Devendra Rana's daughter Devyani Rana securing the seat with a margin of more than 24,000 votes. PM Modi thanked voters in Jammu and Kashmir's Nagrota after the BJP registered sweeping by-poll victories. Voting for the by-polls in the Nagrota Assembly constituency took place on November 11th. मैं देवयानी राणा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी नगरोटा विधानसभा दी सदस्य चुने जाने उपर परमेश्वर दे नां पर सुगंध चुकदे हुए सच्चे मन्ना करने इस गल्ला दा विश्वास दुआनिया जे मैं विधि समित स्थापित भारतीय संविधान दे प्रति सच्ची निष्ठा रखन ते भारत दी संप्रभुता ते अखंडता लई अपनी जिम्मेदारी पूरी वफादारी कन्ने निभां जेड़ी मिगी सौंपी जा करदी है।
पहले उस पर हमें नहीं वो फॉर्म जो मैंने दिया अभी आपको, जो आपने पढ़ा है ना, जो पढ़ा है पिछले साल भी 21 नवंबर को ही था शायद वो सेरेमनी। अच्छा, सेम डे, आज के ही दिन। नहीं 21 नवंबर नहीं, अक्टूबर 21 अक्टूबर थी, श्रीनगर थी। आप बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देवानी जी। जी सर, थैंक यू सर। साइन हो गया, ओथ हो गई है, अब ऑफिशियल विधायक हो गए, प्रोटोकॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले स्पीकर साहब से लीजिए ना आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। डोगरी हमारी मातृभाषा है। हमने ये उचित समझा कि हम अपनी मातृभाषा में ओथ लेंगे। इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से पहले एक निजी व्यक्तित्व तौर पर जो राणा साहब ने स्वयं पिछले साल किया था, हमने वो करने की कोशिश की है। आज हमने जो पगड़ी भी डाली है, हमने कोशिश की है कि जैसे राणा साहब की थी उसी तरीके की रहे। तो ये एक सियासी स्टेटमेंट होने से पहले एक हमारा पर्सनल ट्रिब्यूट है स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब को, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वो अपनी डोगरा आइडेंटिटी में प्राइड लेते थे, उसी तरीके से हम भी लेते हैं। और आपको पता होगा पिछले साल उन्होंने अपने नामांकन रैली के दौरान जम्मू कश्मीर जम्मू जम्मू का नारा रखा था, जिसका हालांकि मैं उनके लिए नहीं, आई कैन नॉट स्पीक फॉर राणा साहब, बट जितना मुझे समझ है वो ये है कि उन्होंने ये बात आपके सामने भी बड़ी बारी रखी थी कि जम्मू कश्मीर की जब बात है तो जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो जम्मू से भी निकल सकती है। और मुझे लगता है कि सियासत के स्टेज पर, हमारे सियासी मंच पर अब जम्मू भी उभर कर, जिस तरीके से पिछले साल में आपने देखा है हमने अपना पक्ष बड़ी जगह रखा है, मुझे उम्मीद है कि और बढ़ चढ़कर जिस तरह से स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब रखते थे, वो हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर रखेंगे। कुछ ताकतें हैं जो कि सिक्योरिटी के जो वातावरण को बिगाड़ना चाहती हैं, कुछ ताकतें हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क के इशारे पे यहाँ पे काम करती हैं। आप एक युवा हैं और उस आतंकवाद को आपने देखा भी है, तो क्या लगता है कि आतंकवाद के प्रति जो एक पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो लोग इसको एक टूल बनाना चाहते हैं और अपनी राजनीति करते हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि दिन रात मेहनत उनकी हमेशा जो है रंग लाती है। उन्होंने बड़ी बड़ी हादसे होने से काफी बारी अवर्ट किया है, और उनका हौसला अफजाई करना हमारा भारतीय नागरिक होने का फर्ज बनता है। मैं खास तौर पर युवाओं से ये साझा करना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले ये याद रखनी है बात कि हम भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक होने का हमने फर्ज अदा करना है। जो चीज खास तौर पर युवाओं के प्रति हमें खोखला करने के लिए एक साजिश जो है रची जाती है, खास तौर पर जब ड्रग्स को लेकर जो मसले चल रहे हैं और नार्को टेररिज्म के द्वारा जो नींव कोशिश की जा रही है भारत में रखने की, मैं युवाओं को ये एक संदेश दूंगी कि आप ये अपना भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य समझें कि आप ऐसे जो चीजें हैं जो देश हित में नहीं है उनसे दूर रहें, और अपने भी फ्रेंड सर्कल्स में, अपने भी परिवारों में एक दूसरे को साझा करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि भारत देश का जो युवा है वो विश्व में सबसे आगे बढ़ने का क्षमता रखता है, और हमें खोखला ये तब करने की कोशिश करते हैं जब हमारे युवाओं को खोखला करने की कोशिश होती है। हमने मिलजुल कर जिस तरीके से भारत देश के युवाओं ने हमेशा विश्व में हमारा जो नाम रोशन किया है, हमने मिलजुल कर एक भारतीय नागरिक होने का फर्ज अदा करना है, और अपने जो खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी और भी मजबूत करना है, उनका हौसला बुलंद करना है, और बढ़ चढ़कर जो है भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देना है। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.